गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इन विच अरेंजमेंट ए स्ट्रिंग ऑफ weightless, fractionless and accessible. Its one end combined by a rigid support and other end combined by a bob. This arrangement known as a simple pendulum. In which arrangement a fractionless, weightless, stretchable string, one end of stretchable string combined by a rigid support and other end combined by a bob known as a simple pendulum. In one end of string of fractionless, weightless and stretchable combined by a rigid support and other end combined by a bob known as a simple pendulum. अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम we consider a fractionless, weightless and stretchable string. We consider a string of small l, length of small l, its one end combined by a rigid support and other end combined by a bob of mass m. When displaced is y distance from its main position at point A to B. Here its weight mg acts downward. Here two component of its weight, horizontal component mg cos theta and vertical component mg sin theta. The resultant of tension and its horizontal component of weight provide this centripetal force for circular motion. The resultant of tension of spring and horizontal component of the weight is provide the centripetal force for circular motion. That is when C minus mg cos theta equals to mv square upon L. Its vertical component mg sin theta provide restoring force for circular simple harmonic motion. Its vertical component mg cos theta provide this restoring force for simple harmonic motion. F equals to minus mg sin theta. You know that formula of sin theta equals to theta minus theta cube upon 3 factorial, theta power 5 upon 5 factorial minus up to so on. That is means sin theta equals to theta. तो आएगा बेटा f इक्वल्स टू m अल्फा होगा माइनस mg थीटा, m टू m कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू माइनस g थीटा। बेटा थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। थीटा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी वाई अपॉन एल, we can write as minus g upon l into y. That is when alpha proportional to minus y. यानी कि आप इसका मोशन जो है ए सिंपल हार्मोनिक मोशन
मोशन है। कैसा मोशन है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर y अपॉन अल्फा। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यू गेट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया। टाइम पीरियड ऑफ क्या गया? सिंपल पेंडुलम। देखिएगा, वी कंसीडर a string of length L is one in combined by reed support and other in combined by bob. When displaced its y distance from its main position A to B at point B, its weight mg is acts downward. Here two component of its weights, horizontal component mg cos theta and vertical component mg sin theta. Then here the resultant of tension of string and horizontal component of its weights mg cos theta provide the centripetal force mg square upon L for circular motion. Vertical component mg sin theta provide the restoring force for simple harmonic motion. तो आएगा आपका f इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो sin थीटा इक्वल टू थीटा। f इक्वल टू m अल्फा, थीटा इक्वल टू y अपॉन l, एंगल इक्वल टू r का मान क्या होगा? रेडियस। तो थीटा इक्वल टू y अपॉन l, वैल्यू रखेंगे बेटा g अपॉन l, y को कांस्टेंट ले लेंगे तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस y, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, that is when motion of simple pendulum is a simple harmonic motion and time period of a body is simple harmonic motion t equals to 2 pi under y upon alpha। y upon alpha की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे l upon g, तो ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे बेटा तो n इक्वल टू होता है 1 अपॉन t, तो n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गई। फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम की। Dependence of time period of simple pendulum of different things, that is when first depends upon mass. Time period of simple pendulum is does not depends upon the mass of the body, mass पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड लेंथ पर डिपेंड करेगा, t इक्वल टू फार्मूला है 2 पाई अंडर l अपॉन g। बेटा g कांस्टेंट हो जाएगा तो t प्रोपोर्शनल टू अंडर l। Time period of simple pendulum is directly proportional to the length of root of the length of the string। यानी कि अगर आप टाइम पीरियड लेंथ को इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका फार्मूला कैसे प्रोवाइड करेंगे? t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर l1 अपॉन g, इक्वेशन नंबर 1। t2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l2 अपॉन g। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट l1 अपॉन l2। थर्ड पॉइंट है t इक्वल टू 2 पाई अंडर l अपॉन g होता है। बेटा अगर लेंथ कांस्टेंट रखे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर g, यानी कि
टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा. फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, T1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G1. T2 इक्वल्स टू होगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G2. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड. T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट G2 अपॉन G1. T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट क्या होगा, G2 अपॉन क्या होगा, G1. तो ये ग्रेविटेशनल के टर्म में आ गया आपका. अगर सपोज करिए कोई बॉडी आपकी इस पे अगर सिंपल पेंडुलम इन लेफ्ट और लेफ्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करती है और डाउनवर्ड मूव करती है, तो उस केसेस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, पॉसिबल. Suppose करिएगा we consider a simple pendulum placed in a lift and lift move towards with a constant acceleration. Then T r minus mg equals to mv. Then r equals to mg plus mv. m को कॉमन कर लीजिएगा तो g प्लस a होगा, डेट्स ऑल. g प्लस a आपके पास हो गया तो ये एक्सेलरेटेड क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ बेटा. तो टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर L अपॉन G प्लस a. बेटा अगर कोई सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में है और लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर L अपॉन G प्लस क्या होगा, a होगा बेटा. अगर लिफ्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है. अब देखिए इसका सेकंड केस. अब ये लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड जा रही है, तो उस केसेस में होगा mg माइनस r इक्वल्स टू m. r इक्वल्स टू होगा mg माइनस m. r इक्वल्स टू m कॉमन कर लेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, g माइनस a. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया, g माइनस a होगा. तो t इक्वल्स टू फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g माइनस a. यानी अगर कोई सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के इनसाइड है और लिफ्ट आपकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस a. तो बेटा आज का टॉपिक मैंने बताया सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड एंड डिपेंडेंस अपॉन डिफरेंट थिंग्स. तो ये आपको कवर करना है, तैयार